Let's do some accounting. Let's do some accounting. I am an accountant. Let's do some accounting. Let's do some accounting. Let's do some accounting. I am an accountant. Hello and welcome to my channel Commerce with Seema. सो आई एम श्योर आप लोगों की फर्स्ट टर्म की प्रिपरेशन बहुत फुल स्विंग में चल रही होंगी. आपने मेरी पिछली वीडियो देखी चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की सारी ट्रीटमेंट मैंने एक्सप्लेन करी थी और ये भी बताया था कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, इनकी ट्रीटमेंट होती है एज पर द केस. Whatever value is given, accordingly we have to see कि claim कितना आया है and with that we distribute the remaining amount in the partner's capital. So taking up the same case with the help of one question, which I said that last time I will take one question and explain you in a better form. So today I have come out with the question. Question says, Vinny, Mohini and Nina are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. They decided to share future profits equally. Old ratio 3:1, new ratio equal. Show the accounting treatment if in the extract of your balance sheet it shows that workman compensation reserve is 60,000. Workman compensation reserve is 60,000. I'm sure वो journal entries आप लोगों को याद होंगी. कोई बात नहीं, अगर भूल भी गए हो तो मैं केस के साथ क्वेश्चन के साथ लिंक अप करके उसको ले लेती हूँ. ठीक है. So let us see the first case. First case says when there is no claim. When there is no claim against the WCR, Workmen Compensation Reserve, and no other information is also mentioned regarding this. So what is to be done? In that case, अगर क्लेम नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है. दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, कोई क्लेम नहीं आया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको चेंज करना है तो ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रिजर्व को. एंड क्लेम नहीं है तो फुल अमाउंट ऑफ दिस रिजर्व वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग योर पार्टनर्स कैपिटल इन द ओल्ड रेशियो. ओके. What is going to be the journal entry? Workman compensation reserve account debit 60,000. To Vinny's capital account, to Mohini's capital account, to Nina's capital account with the amount in the old ratio 3:2:1, that is 30,000, 20,000 and 10,000. ये तो सबसे सिंपल केस हो गया जहाँ पर क्लेम अमाउंट है ही नहीं. अगर कोई क्लेम नहीं है तो फुल अमाउंट ऑफ रिजर्व हमने यहाँ पर लेकर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके. कमिंग टू द सेकेंड केस. Second case says when there is no claim against WCR, Workmen Compensation Reserve, and it was decided by the partners to continue with the reserve. That means partners decided that they will continue with the reserve. अब अगर partners decide करते हैं that they will continue with the reserve, so what do we do under that case? जैसे आप goodwill distribute करते हो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में, वैसे ही फिर आप रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे इफ पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू द रिजर्व इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ नो चेंज. सो आप रिजर्व लेते हैं 60,000 और उसका पोर्शन ऑफ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यहाँ पर हमने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो वी गॉट gaining partner as Nina and sacrificing partner as Vinny. Gaining partner's capital account debit to sacrificing partner's capital account. In the sacrificing ratio the amount will be distributed. 60,000 का amount आ गया 10,000 and that will be distributed as a portion between gaining to sacrificing partner's capital account. Okay? ये केस था जहाँ पर पार्टनर्स ने डिसाइड किया क्लेम तो नहीं है तो रिजर्व पूरा अमाउंट है, बट पार्टनर्स ने डिसाइड किया दैट दे विल शो द रिजर्व एज द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो नेट इफेक्ट से हम शो करेंगे जैसे गुडविल को कर रहे हैं इस चैप्टर में. नेट इफेक्ट से गुडविल को भी आप शेयर करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे विद द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स. ओके. Now comes the third case. Third case says when claim for workman compensation was 48,000. Claim for workman compensation was 48,000. Reserve कितनी है हमारे पास?
60,000 की। अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आया है 48,000। दैट मीन्स कि आपके पास क्लेम आया 48,000 का रिजर्व देने के लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन को। सो 60,000 माइनस 48,000, 12,000। दिस 12,000 विल बी लेफ्ट। इवन इफ आप रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो 48,000 का, तब भी आपके पास अमाउंट बचता है 60,000 माइनस 48,000। सो आप क्या करेंगे, आप इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है 12,000, 60,000 माइनस 48,000, 12,000 का जो रिमेनिंग अमाउंट आया वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द जर्नल एंट्री, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, क्योंकि क्लेम आ गया, कितने का क्लेम आया है 48,000 का क्लेम आया है। सो आप इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जब आप क्लेम सेटल कर देते हैं 48,000 का, तो रिमेनिंग अमाउंट आई बची 12,000 की, उसको आपने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज 6,000, 4,000 एंड 2,000 अमंग विनी, मोहिनी एंड Nina. Okay, so this is case number 3. Now coming up to the case number 4. Case number 4, here you can see what is the case. Case says that the claim for workman compensation is 75,000. So 75,000 का claim आ गया। रिजर्व कितनी है हमारे पास, रिजर्व है 60,000 की, क्लेम आया मेरे पास 70,000 का। तो मैं क्या करूंगी, मैं 60,000 का रिजर्व, पूरा का पूरा रिजर्व यूटिलाइज कर लूंगी फॉर सेटलिंग अप द क्लेम। लेकिन फिर भी मेरे पास शॉर्टेज पड़ रही है, मुझे और 15,000 की जरूरत है। कौन से 15,000, जो 75,000 का क्लेम आया माइनस 60,000 रिजर्व विच इज अवेलेबल टू अस। सो दैट मीन्स 15,000 मोर इज रिक्वायर्ड। वो हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, वो हम एडजस्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ से इस चैप्टर में स्टार्ट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच शोज द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रीअसेसमेंट, when revaluation of assets and reassessment of liabilities take place, then the account opened is revaluation account. तो यहाँ पर हम अपने changes दिखाते हैं, ठीक है। सो जर्नल एंट्री क्या आएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, फुल अमाउंट रिजर्व यूज कर लिया मैंने। बच्चा मेरे पास अभी भी अमाउंट चाहिए मुझे 15,000 विच आई हैव टेकन फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट विथ 15,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। और क्लेम आया है मेरे पास 75,000 का, जिस 75,000 में से 60,000 का रिजर्व ऑलरेडी था, 15,000 हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले लिया। फाइन, सो हम ये एंट्री पास करते हैं। लेकिन एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी अब इसमें, क्योंकि रीवैल्यूएशन से लिया है, तो अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो किसको बियर करना पड़ता है या किस में शेयर होता है, आपके पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सो आप वही करेंगे। यहाँ पर आपको जो 15,000 बियर करना पड़ा रीवैल्यूएशन डेबिट करके, अब आप पार्टनर्स से वो अमाउंट कॉम्पनसेट करते हैं और लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। So when you distribute the loss, journal entry is Winnie's capital account debit, Mohini's capital account debit, Nina's capital account debit to revaluation account 15,000 in old ratio of 3:2:1. So Winnie is bearing loss of 7,500, Mohini loss of 5,000 and Nina loss of 2,500. ये 15,000 जो हमने रिवैल्यूएशन से एडजस्ट किए थे, उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, नाउ कम्स द केस नंबर 5. केस नंबर 5 सेज क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन वॉज 60,000. सो 60,000 का ही क्लेम है यहाँ। अब अगर 60,000 का ही क्लेम है और 60,000 का ही रिजर्व है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फुल अमाउंट ऑफ रिजर्व आप लेते हैं और अपना क्लेम सेटल कर देते हैं, क्योंकि इतने पैसे आपके पास हैं, आपको ना कहीं से बोरो करने हैं, ना आपके पास सरप्लस बचा, नलीफाई हो जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व यू विल टेक एंड यू विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर क्लेम, अगेंस्ट क्लेम. So what is going to be the journal entry? Workman compensation reserve account debit to workman compensation claim
विथ ₹60,000 और ये अमाउंट तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो जितना मेरे पास अमाउंट है मैं वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ और यहाँ से क्लेम को सेटल कर देती हूँ। So you can see very well that we have taken up the cases of workman compensation reserve here, जो changes in PSR के साथ start होता है लेकिन death of partner तक continue होगा। So same treatment is going to be there। आप old ratio में ही distribute करेंगे। Changes in PSR chapter में आप all partners लेते हैं, old ratio में distribute करते हैं। Admission में old partners old ratio हो जाएगा। Retirement में old partners that is all partners इन ओल्ड रेशियो हो जाएगा और डेथ के केस में भी यही होगा। ऑलराइट, सो वी हैव टोटल 5 केसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व।